ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਕੰਪਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਰਾਈਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਰਾਈਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। स्वागत है कि आज हम ट्रेनिंग के लिए एक वर्कशॉप के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम आशमा है और मैं आपकी ट्रेनर रहूंगी आज। ठीक है, तो आप सभी जोमेटो की तरफ से हैं, उनके एम्प्लॉइज हो। ऑडिबल हो? मैं कुछ ऐसा तो नहीं बहुत जोर से आ रही है? ठीक है, सभी कंफर्टेबल हैं? खाना खा के आए हैं? यहाँ पे भी खाया है? फिर तो ठीक है, फिर फुल एनर्जी होनी चाहिए है। हाँ जी, नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं पता। यस, फर्स्ट एड है। प्लस अगर कोई ऐसा पेशेंट मिल जाता है जिसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट समझते हैं हम? दिल जब हार्ट हमारा रुक जाता है काम करने से, सांस बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे जो प्राथमिक सहायता आप उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए कर सकते हो, उसी की क्लास है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं यहाँ से। सर अपने बारे में बताएंगे, आप माइक ले सकते हो या ओके वैसे? हेलो सारे मेरे वीरों को सत श्री अकाल। ठीक है जी, तो मेरा नाम स्वराज सिंह है, खरड़ तो मैं BR मॉल इलपुर मेरी लोकेशन है। ठीक है, कई सालों ਤੋਂ मैं काम कर रहा, बहुत वधिया मैनूं काम लग्या है। देखो कमियां भी अपने दे विच भी हुंदियां है ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਡਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਰੋਡ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਵੀਗੀ ਜੋਮੈਟੋ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਰਾਈਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ। अपना ध्यान रखो, गर्मी बहुत है मेरे वीरों। ठीक है, राइडर ਨੂੰ खास करके यूनिफॉर्म जरूर पा के रखो। कई बंदे हस भी रहे हैं, मेरे जानकार हस रहे हैं, मेरे नाल रहने वाले भी जी गल मैं कर रहा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है।
बातें बोली है इन्होंने। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? आपका कोई लीगल पर्सपेक्टिव है इसके पीछे, यानी आपका कुछ स्टैंडर्ड है। जोमेटो वालों ने अगर आपको कुछ ड्रेस दी है तो वो आपका क्या है, ड्रेस कोड है, दिखता है कि आप जोमेटो कर रहे हो तो आपको ड्रेस वेयर करनी चाहिए, ताकि आप देखो कि इस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो। थैंक यू सर। ठीक है। हेलो, मेरा नाम सपना जैन है और मैं मनी माजा की लोकेशन से हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने पहली बार कोई फीमेल डिलीवरी वुमेन देखी है, क्लैप करो भाई उनके लिए। मेरा नाम शुभम मोर्या है, मैं यूपी से हूँ। ओके, इधर को चलेंगे ऐसे, इधर वाले पूरे करते हैं पहले, है? हेलो, हम पीछे बिहार से हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार शाह है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार शाह। मैं काम करता हूँ पीछे, मैं 45 में रहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, मैं यूपी से हूँ। मेरा नाम रईस खान है। धन्यवाद रईस। हेलो ਵੀਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੇਰਾ ਭਰਾ वाह, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਾਰੇ गुड मॉर्निंग। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋਬਨ ਹੈਗਾ ਬੀਆਰ ਮੋਲ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद राहुल, मैं बीआर मोर पंजाब तो मेरी लोकेशन है ते खरड़ तो। धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम जसपाल सिंह है। वी आर मोर लोकेशन खरड़। अच्छी गल जी सारे ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਮੇਰੇ। सारे खरड़ वाले मैक्सिमम हैं, मनी माजरा वाले आपका। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੈੜ ਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ अपना इधर करता, वेलकम करो। हेलो, मेरा नाम अनिल है, मैं सेक्टर 54 में रहता हूँ और मेरी लोकेशन 5 पे है। बहुत बढ़िया। मेरा नाम रविंद्र सिंह है और मेरी लोकेशन 5 पे। देखो आज कितने आप सब तो एक दूसरे को नहीं जानते हो ना, सब एक दूसरे को नहीं जानते हो, आज कितने लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है ना। मेरा नाम सुनील कुमार है, तो मैं ही 5 पे से हूँ। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। ठीक है। कुछ बोल रहे थे यहाँ से कोई? अच्छा, मेरा नाम विष्णु कुमार है जी, मेरी लोकेशन खरड़ है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरसेवक सिंह है जी, खरड़ लोकेशन। स्माइलिंग बॉय, नाम बताने से शर्म आ रही है। ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੇ ਦਾ सेकंड राहुल इन दिस बैच ना। मेरा ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ राजधानी भी है। मैं सेक्टर 9 पे नंबर आ गया भाई हमारा। नमस्कार जी, मैं मनोज सिंह अयोध्या से हूँ। मेरी लोकेशन रामला है। मेरा नाम सिराज है, मेरा लोकेशन सेक्टर 22 चंडीगढ़। सभी को राम राम जी। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। चंडीगढ़ मेरी माता की लोकेशन है। बस बस बस, मेरा दूसरा नाम कोई बोलने का जसपाल मौका है। दिया जाए। पता नहीं चला, फिर से बोलिए। सॉरी, इन्होंने हमारा ध्यान भंग किया है ना, आप फिर से बोलिए। मेरा नाम यशपाल है, मैं मनीवाजा के लोकेशन। ठीक है। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम रमेश यादव है। मैं पीछे यूपी के मेठी जिले से बिलोंग करता हूं और मेरी लोकेशन इंडस एरिया फेस 1 है। मेरा नाम रमेश यादव है, मैं इंडस एरिया फेस 1 की लोकेशन है। माइक देने के लिए थोड़ा सा आगे आके प्लीज। ये सेकंड इनको आगे। हाँ, फिर ऐसे। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं यहाँ से हूँ। मेरा लोकेशन कैसे चंडीगढ़। मेरा नाम जगजीत है, मैं 5 ये जगजीत ये 5 में की लोकेशन है। ये 2 सालों के काम है। नमस्कार सबको, नाम मेरा सरबजीत सिंह। क्या फेस 9 की लोकेशन है, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर। मेरा नाम सुमित है, मैं नए गाँव का रहने वाला हूँ और लोकेशन भी 15 सेक्टर। मैं प्लेस यादव।
गौरव है। आपने बोला उनको भी माइक दीजिए भाई, बिना ड्रेस के बैठे हैं, छुप नहीं सकते आप हमसे। मेरा नाम रंजीत है और मैं TDI मैं TDI आगे हाल ही में काम करता हूँ। अभी नए नए लगे और वहाँ पे चलो कोई बात नहीं, माफी आपको। मेरा नाम गौरव है, मैं नया गांव से हूँ, 15 सेक्टर से पूरा। मेरा नाम मनदीप है, मेरी लोकेशन है VR मॉल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम देवेंद्र है, मेरी लोकेशन मनी माता की, मैं पहला उत्तराखंड से करता हूँ। पहाड़ों से राम राम जी, मनोज कुमार पंचकुला से। एक तो ये भी रह गए, ये हो गया, वो रह गए हमारे 3। हाय, माय नेम इज समीर, मैं बनी माजा से हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम देव प्रकाश है। मेरा नाम सुखलाल है। मैं अभी 2 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया जोमेटो, तो मैम अभी टी-शर्ट डाली नहीं है, क्योंकि साउथ में पहले तो नए जो हैं और किसको 5 साल किसको हो चुके हैं? 5 साल वाले हाथ खड़ा करें। अरे वाह, उनके लिए तालियां बजाएं। उनके लिए भी तालियां बजाओ। 10 साल हुए किसी को? हाँ जी, 1 साल किसी ने पूरा कर लिया? 10 साल तो कंपनी नहीं हुए, कंपनी में नहीं हो चुके होंगे, मुझे भी नहीं आइडिया। 1 साल जिसने पूरा कर लिया, चलो भाई तालियां बजाओ सबकी। आपका एड्रेस है जहाँ की आपकी लोकेशन है, राइट? उसके बाद आपका आ जाएगा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जिनकी है वो लिख सकते हैं, जिनकी नहीं है। सबकी है ईमेल आईडी? ईमेल आईडी तो सबकी होनी चाहिए ना आपकी ईमेल आईडी, तो सभी अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे और अपने सिग्नेचर करेंगे, ठीक है? आपका नाम आएगा सबसे पहले, फिर एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और फिर आपके सिग्नेचर आएंगे, ठीक है? थैंक यू। जिंदगी बचा के बहुत खुशी मिलती है, तो कुछ बेसिक थिंग्स हैं, बोर नहीं होना है, सोना नहीं है, ठीक है? सोना नहीं है सर, हाँ, और टेंशन से नींद आती है, टेंशन से नींद नहीं आती है ना? वही तो कर लेगी। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है? सबको दिख रहा है? अगर इधर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है वैसे, है ना? टॉप पे है, ठीक है। फर्स्ट एड में भी हमारी तरह तरह की इमरजेंसीज होती हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी में मैंने पहले भी बताया था शुरू करते टाइम, जब आप किसी कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी, यानी जिसकी सांस रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है, उन मरीजों को जब बचाने के लिए प्रयास करते हो, वो इमरजेंसीज, ठीक है? दूसरा आ जाता है इंजरीज, चोट लग जाना, यस, तो वो इमरजेंसीज आ जाएंगी आपकी। और इन्वायरमेंटल इमरजेंसीज आ जाएंगी, यानी वातावरण से रिलेटेड कुछ भी हमारी कोई इंजरीज हो जाती है, फ्रैक्चर हो गया, गिर गए, है ना, या फिर कुछ कैटास्ट्रॉफ हो गया, जैसे भूकंप आ जाता है, बस पलट गई, तो ऐसी कुछ इमरजेंसी, ठीक है? और बेसिक स्टेप्स पढ़ेंगे हम CPR में। हाथ खड़ा करेंगे। CPR किस किस को सुना है? जिसने सुना है CPR सुना है? करी भी हुई है, बहुत बढ़िया। कहाँ करी है आपने? लाइव करी है? अच्छा, डमी पे प्रैक्टिस करी है आपने, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे अरेस्ट होगी, CPR दे लोगे मेरे को? कर लोगे CPR? बहुत बढ़िया, आना चाहिए हमें CPR देना, किसी की जिंदगी बचा सकते हो आप। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो पढ़न की लोड़ ही नहीं है ना? चलो बढ़िया, तो अपन शुरू करते हैं। सो व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड होती क्या है? फर्स्ट मतलब पहली, प्राथमिक, और एड यानी उपचार। हिंदी में बताएं तो यही है ना? एक लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे तो यानी प्राथमिक उपचार जब दिया जाता है। कब दिया जाता है प्राथमिक उपचार? यस, जब हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई कंसर्न सही पर्सन के पास ना पहुंच जाए या मेडिकल हेल्प के पास ना पहुंच जाए, उससे पहले जो प्राथमिक सहायता दी जाती है किसी भी विक्टिम को। विक्टिम समझते हो? घायल प्राणी, है ना, विक्टिम। तो उसको जब आप पहली प्राथमिक उपचार करते हो, उसका कुछ भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी उपचार आप कर पाते हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। तो यही है इसमें कि इट इज अ इमीडिएट केयर दैट गिवन टू अ पर्सन
विद एन इलनेस और इंजरी, यानी कोई बीमार है या किसी को इंजरी पहुंच गई है, कोई भी मेडिकल एड पहुंचने से पहले या दूसरे को हैंडओवर करने से पहले जो हम प्राथमिक उपचार देते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन? यानी प्राथमिक उपचार जो आपने दिया उसको फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। 3 चीजें हैं, मतलब 2 चीजें मेन है, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस। सुना है कभी? रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स करने से क्या समझते हो आप? रिस्पॉन्स मैंने इनको मुक्का मारा और इन्होंने आगे से मेरे को मुक्का मार दिया, या फिर अपने को बचाने के लिए पीछे हटे, है ना। मैंने मुक्का मारा, ये अपने को बचाने के लिए पीछे हटे, तो ये होता है रिस्पॉन्स, यानी स्टिमुलाई देना। मैंने स्टिमुलस दिया और उन्होंने आगे से एक्ट किया। एक्ट समझते हो ना, है ना, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। और अनरिस्पॉन्सिवनेस जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। क्या क्या चीजें आती हैं रिस्पॉन्स में? अगर वो बंदा मूव नहीं कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ब्लिंक नहीं कर रहा है, ब्लिंक यानी आंखें झपकना, है ना, ब्लिंक नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम अनरिस्पॉन्सिवनेस। जैसे कोई पर्सन बेहोश पड़ा, हो जाते हैं ना हम बेहोश, बहुत गर्मी लगी तब बेहोश हो गए, बीपी डाउन हो गया तब बेहोश हो गए, कुछ भी हो जाता है, और हम उसको जोर जोर से बुला रहे हैं, उसको चूटी काट रहे हैं, उसको जोर जोर से शेक कर रहे हैं शोल्डर पे, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ना वो मूव कर रहा है, ना वो बात कर रहा है, ना वो ब्लिंक कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसको बोलते हैं अनरिस्पॉन्सिवनेस। ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। क्यों? ये जुड़ी हैं वही CPR से, ठीक है। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं हमारी इंजरी इमरजेंसीज। इंजरी इमरजेंसीज यानी कोई भी आपको घाव हो जाता है, किसी भी चीज से लग जाती है, गिर गए, या किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट ने आपको इंजर्ड कर दिया, वो सारी इंजरीज हम पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या है, क्या लिखा है? ब्लीडिंग। पढ़ पा रहे सभी? ब्लीडिंग, ब्लीडिंग यानी खून बहना, है ना, खून बहने को ब्लीडिंग बोलते हैं। तो क्या है, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे आप? ब्लीडिंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करोगे? 3 तरीके से ब्लीडिंग होती है हमारी। आपने सुना होगा ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, बोलते हैं हमें सुई लगा दी, तो उसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है? सुई कैनुला जिसमें डलता है, दवाइयाँ जिससे आप फ्लूइड देते हो, इंजेक्शन देते हो, क्या बोलते हो उसको? वेन्स। सुना है? नाड़ियाँ, नाड़ियाँ, आम भाषा में बोले तो नाड़ियाँ। ये जो हमारी दिख रही हैं, आपकी पतली पतली वेन्स दिख रही हैं, जिसमें कैनुला डाल देती है नर्सिस, जिसमें इंजेक्शन डाल देती है नर्सिस, वो आपकी वेन्स हैं। तो जब वेन पे कोई इंजरी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। दूसरा होता है आर्टरी। आर्टरी सुना है कभी? धमनियाँ, धमनियाँ सुना है? फील किया है कभी? अपनी धड़कन फील करो यहाँ पे। धड़कन यानी कि पल्स ही होती है, सभी फील करेंगे, अपनी करेंगे इसको फील। बुखार हो जाता है, हमारी धड़कन जब तेज हो जाती है, तो आपके घर में बच्चे होंगे, अपने बच्चों को पल्स रेट देखते हो, यही आपकी पल्स है, यही आपकी धमनी है। तो इसमें भी इंजरी हो जाए, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और एक होता है जब छोटी सी इंजरी हो जाती है, माना यहाँ पे मेरे को किसी नीडल ने पंचर कर दिया, खून निकल गया, कोई छोटा सा ब्लेड लग गया, खून निकल गया, वो होती है हमारी कैपिलरीज, कैसिका बोलते हैं, तो हिंदी में कैसिका सुना होगा। 3 चीजें क्या बताई हमने ब्लीडिंग के लिए? ब्लीडिंग 3 तरीके से होती है, या तो वेन से ब्लीडिंग होगी, या तो आपकी आर्टरी से ब्लीडिंग होगी, या तो कैपिलरीज से होगी। वेन यानी आपकी नसें, नाड़ियाँ, कैपिलरीज यानी जो छोटी छोटी कैशिकाएं हैं आपकी, और आर्टरी यानी आपकी धमनियाँ। तो इन 3 तरीकों से ही ब्लीडिंग होती है। अगर इनमें कोई चोट लगी तभी खून बहेगा, क्योंकि इन्हीं में खून है और वही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो पहला है आपका आर्टरी का ब्लीडिंग। आर्टरी यानी क्या बताया अभी मैंने? नहीं, आर्टरी क्या बताया? धमनियाँ, पल्स। पल्स तो याद रख सकते हैं हम, धड़कन याद रख सकते हैं हम, जो आपको फील होती है हमेशा, पल्पेशन होती है जिसमें। तो ये आर्टरीज जो होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। छोटा सा उदाहरण देती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। आर्टरीज यानी जो हमारे हृदय से साफ सुथरा खून पूरे शरीर में भेजती हैं, समझ गए? अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो आपको करना क्या है? वैसे तो आप एक्सपीरियंस हो हर चीज़, ये तो देसी चीज़ें हैं, है ना, हमें पता है, पर फिर भी
मेडिकल बेस से आप और क्या क्या कर सकते हो ये जानना है हमने। तो पहली बात तो अगर आपके पास मेडिकल किट है तो क्योंकि दूसरे के खून में कीटाणु हो सकते हैं और कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। सुना होगा HIV का नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस का नाम सुना होगा, काला पीलिया, है ना। तो वो संक्रमण हमें ना लग जाए इसके ग्लव्स डालना बहुत जरूरी है ना। ग्लव्स इसलिए डालने कि हमारी प्रोटेक्शन हो पाए और हमारे हाथों में भी जो जर्म्स हैं वो दूसरे की बॉडी में खून टच कर दोगे ऐसा, उसका जख्म ऐसे टच कर दोगे तो उसका इन्फेक्शन चला जाएगा। तो इसलिए पेशेंट की सेफ्टी के लिए, विक्टिम की सेफ्टी के लिए और खुद की सेफ्टी के लिए हमें ग्लव्स वेयर करने हैं। बिहार में क्या बोलते हैं, बिहार वाले बहुत ज्यादा नहीं, आप यूपी वाले, यूपी वाले हैं, बिहार के ही हैं, यूपी के थे। सबकी भाषा में सुनना है मैंने कल, मुझे पंजाबी में भी नहीं पता, नक्सीरी बोलते हैं, हिंदी में भी नक्सीर बोलते हैं, बिहार में क्या बोलते हैं सर? बैठिए प्लीज, बैठिए। नाक। और यूपी में नक्सीरी बोलते हैं। हाँ, हिंदी भाषा चलती है वहाँ, है ना। सो नक्सीर की बात कर रहे हैं हम। नोज ब्लीड कॉमन है, सुना होगा, बच्चों को होता रहता है, बड़ों को भी होता है, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो, आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बैठ जाना है, छींक नहीं मारनी है, नाक में उंगली नहीं डालनी है, कॉमन है, नाक में उंगली नहीं डालनी कि हाई ब्लड निकल रहा है, हाई ब्लड निकल रहा है, ठीक है। बैठ जाना है, चेयर पे या बेड पे बैठिए। आपने सिर पीछे को नहीं करना है, क्या करोगे, सिर थोड़ा सा आगे करना है, लीन होना है आगे की तरफ, लीन यानी आगे की तरफ थोड़ा सा झुकाव करना है बॉडी का, ठीक है। और जो सॉफ्ट पार्ट होता है हमारा, सॉफ्ट वाला, हड्डी वाला पोर्शन नहीं पकड़ना हमने, सॉफ्ट वाला पार्ट है उसको आपने दबा के रखना है और मुंह से सांस लेना है। मुंह से सांस ले सकते हैं तब भी सांस आता है हमें, तो हम थोड़ा सा लीन हो गए, ठीक है। और हमने नाक का सॉफ्ट वाला पार्ट अपना दबाया और मुंह से सांस लेना है और जब कम से कम 10 मिनट के लिए रोक के रखना है। उसके बाद देखिए ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं, अगर हो रही है तो फिर कंटिन्यू 10 मिनट के लिए करें, फिर इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर आपने फटाफट से मेडिकल इमरजेंसीज में अपने को ट्रीट कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाना, इतना ही करते हैं हम, ठीक है। उस टाइम पे ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। हाँ, नाक से खून निकल रहा है, आप मोटा गोश्त पीस ले सकते हो, कोई कपड़ा ले सकते हो, साफ धुआ के रख सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो, उसको भी लगा सकते हो। नाक बंद करना है, हड्डी वाला पार्ट बंद नहीं करना है। कौन सा करोगे, ये वाला नोस्ट्रिल्स के जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, और सिर पीछे करोगे या आगे करोगे, ठीक है। तो आराम से बैठ जाना है, घबराना नहीं है, स्नीज नहीं करना है, उंगली नहीं डालनी है, छेड़ना नहीं है बार बार नाक को, बस आगे होके आपने दबाना है और मुंह से सांस लेना है, कोई कपड़ा नहीं लेना, उससे साफ कर सकते हैं, ठीक है। पर बहुत देर तक वेट नहीं करना है, आपने मेडिकल इमरजेंसी में अप्रोच कर लेना है इमीडिएट। आगे आता है कट्स एंड एब्रेशंस। कट्स, कट लग जाना किसी तीखी नुकीली चीज से, कोई ब्लेड हो सकता है, कोई निडल हो सकती है, चाकू हो सकता है ना, कोई टूटा हुआ ग्लास हो सकता है जिससे आपको कट लग सकता है। तो कट्स हो गए। एब्रेशंस क्या होते हैं, गिर गए आप, रगड़ लगी, है ना, और वहां पे जख्म हो गया, घाव हो गया, तो उसको हम एब्रेशंस बोलते हैं। इंग्लिश में एब्रेशंस बोलते हैं, हिंदी में हम घाव बोल देते हैं, ठीक है। सो एब्रेशंस होते कैसे हैं, बता ही दिया मैंने कि जब हमारी स्किन रब होती है, फ्रिक्शन होती है, नीचे रगड़ खाती है किसी चीज से, तो स्क्रैप ऑफ हो जाती है। स्क्रैप ऑफ यानी पील ऑफ, निकल जाएगी, है ना। ये बहुत सिवियर नहीं होता, इसमें ब्लीडिंग जो है थोड़ी होती है, क्योंकि ऊपर कैपिलरीज होती हैं हमारी, सबसे ऊपर बहुत डीप चला गया और एब्रेशन को बहुत रेयर होता है, तो ऊपर तो हमारी कैपिलरीज हैं और उनमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, उनमें थोड़ा ही ब्लड होता है, थोड़ा ब्लड होता है, इसलिए वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। इमीडिएट ट्रीटमेंट आपने फिर भी क्या करनी है, अगर एब्रेशंस हो जाते हैं, कोई गिर गया, रगड़ लगी, तो क्या करना चाहिए, ग्लव्स वेयर करने, क्योंकि ब्लड तो होएगा, दूसरे के ब्लड से खुद को कंटेमिनेशन नहीं करना है, इन्फेक्शन नहीं लेना है आपने, ठीक है, और ना ही उसको इन्फेक्शन देना है। तो आप ग्लव्स डालोगे, जख्म को पानी से साफ करोगे, कुछ और नहीं है। हमारे पास तो सलाइन होता है हॉस्पिटल्स में, आपकी किट में सलाइन होएगा, नहीं है, कुछ नहीं है, प्लेन वाटर ले लो, आप उसके साथ उस जख्म को साफ कर लो। उसके बाद आपकी किट में कुछ ना कुछ तो लोशन वगैरह होएगा, यानी मेडिकल लोशन, ऐसे नहीं कुछ भी लगा देना, कोई भी क्रीम अप्लाई कर देनी है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है हमने उसको, और आप छोड़ सकते हो उसको, जैसे कि हाइड्रोजन नहीं डालनी, हाइड्रोजन नहीं डालनी, हाइड्रोजन को गंदे जख्म को बीच में कुछ पस वगैरह उसको निकालने के लिए करो, साफ करने के लिए हर कॉमन जख्म पे हम हाइड्रोजन नहीं डालते,
यस, डिटॉल डिल्यूट करके डालना है, क्योंकि हर किसी की सेंस है ना, सेंसरी बहुत स्ट्रांग होती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। बिटाडीन लगा सकते हो, कॉमन है जो बता देते हैं, न्यूस्पोरिन है, बिटाडीन है, वो आप लगा सकते हो। डिटॉल के साथ भी साफ कर सकते हो, बट लोशन की बात कर रहे हैं हम कि कोई क्रीम अप्लाई कर दोगे तो उससे जख्म जो है, एक तो एंटीसेप्टिक है वो, और जख्म को भरने में वो मदद करती है। हो जाए तो क्या नहीं करना है, एक तो बार बार उसको हिलाना नहीं है, मोड़ना नहीं है, सीधा नहीं करना है, स्प्लिंट लगाना है, और कुछ खाना पीना नहीं है, और इमीडिएटली अस्पताल चले जाना है, किसी बैग के पास नहीं जाना है, ठीक है। चलो राइस कौन बताएगा, चावल, चावल के बारे में कौन बताएगा? अपने आप हाथ खड़ा कर दो, नहीं तो मैं तो बीच में से रैंडमली उठा लूंगी कोई भी। चावल बता दो, क्या करेंगे चावल का? चलो चावल को बहुत बढ़िया भाई, क्लैप करो, बहुत बहुत सही कॉन्फिडेंस देखो ब्रो का, वेरी गुड। आप ही बता रहे थे, बता दो एक बार, कोई बात नहीं, फिर से बता दो। सबको पहले ये ठीक है, वो तो बाद कोई भी जितने भी जगह में जाओ उसे बर्फ लानी अप्लाई करना, कंप्रेस करके रखना, दब के रखना, एक तो ऊंची जगह पे। वेरी गुड, चलो इनके लिए भी क्लैप करो। देता है, बेहोश हो जाता है, तब आपको क्या करना है, क्या क्या लिखा है? अप्रोच सेफली। माना आप रोड पे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहां पे चेतना चली गई, उसकी बेहोश हो गया, हमें नहीं पता बेहोश हुआ है या कुछ और ही हो गया है, तो पहली बात सेफली जाना है उसके पास। आप बीच सड़क पे लग के वहीं पे सीपीआर देने, खुद भी उड़ोगे और जो उड़ा रहा है उसको भी उड़ा दोगे, और 2-3 लोग जो आपकी मदद के लिए आएंगे वो भी उड़ जाएंगे। उसको निकाल के पहले बाहर लाओ, फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू करो, है ना। कुछ गिर गया है, छत गिर गई है, चट्टान गिर गई है, होता है ना, कर्मचारी ऐसे भी होते काम करने वाले, तो उसको आपने पहले वहां से निकालना है। तो अप्रोच सेफली करनी है आपने, सेफ्टी का ध्यान रखना है। किस किस की सेफ्टी का ध्यान रखोगे? अपनी सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखना है, फिर उस मरीज की, और फिर आपकी मदद करने वाले, ठीक है। दूसरी चीज आगे धीरे धीरे और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। फिर आएगा चेक करना है रिस्पांस। रिस्पांस क्या है? देखना है चेतना में आ गया कि नहीं आ गया, तो उसको जोर जोर से हम हिलाते हैं, ऊंची आवाज में पूछते हैं आप ठीक हो, आप ठीक हो, तो रिस्पांस चेक करना है। तीसरी चीज है आपकी ब्रीदिंग चेक करना। ब्रीदिंग यानी सांस। मैं ब्रीदिंग के साथ आपको बोलूंगी आपने धड़कन भी चेक करनी है। अब धड़कन चेक करने के लिए वो भी बताएंगे कैसे चेक करनी है, आगे बताएंगे, ठीक है। तो 2 चीजें चेक करनी है, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। चौथी चीज है आपकी कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाना है। अकेले लगे रहोगे सीपीआर करने तो बचा नहीं पाओगे, तो मदद के लिए शोर मचाना है, हेल्प हेल्प हेल्प, मदद के लिए कोई आओ, आपके आवाज में दम होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपने, अगर आपको लग रहा है कि धड़कन और सांस नहीं है, तो चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देने हैं, बताएंगे वो, ठीक है। छाती पे हाथ रख के हम उनको कंप्रेशन देते हैं, हार्ट को कंप्रेशन देते हैं, ताकि वो अपना काम शुरू करे, ठीक है। पंप करें। और फिर आ गया 2 रेस्क्यू ब्रेथ लेने हैं। ब्रेथ यानी सांस भी तो देना है, धड़कन दिल को चलाने के लिए तो आप कंप्रेशन दे रहे हो, छाती पे हाथ रख के उसको दबा रहे हो 30 बार। 30 बार दबाने के बाद 2 बार सांस लेना भी जरूरी है, ठीक है। तो 2 सांस भी देने हैं, वो भी बताएंगे हम कैसे करना है। ये क्लियर है? सेफ्टी अप्रोच करना है, रिस्पांस चेक करना है, फिर क्या है? ब्रीदिंग और धड़कन और सांस चेक करना है, हेल्प के लिए बुलाना है लोगों को, फिर आपने सीपीआर शुरू करना है, कंप्रेशन शुरू करने, 30 कंप्रेशन, 30 बार छाती दबानी है और 2 सांस लेनी है, फिर से 30 बार छाती दबानी है और 2 सांस लेनी है, ठीक है। करते हैं हम फटाफट से फोन कर देते हैं कॉल सेंटर में और उनको बोल देते हैं कि कोड ब्लू अनाउंस करा दो। हमारा जो कोड ब्लू होता है वो कार्डियक, जब किसी की धड़कन और सांस रुक जाता है उसके लिए बनाया गया। तो जब हम अनाउंस कराते हैं ना माइक पे, तो फटाफट से 1 मिनट के अंदर वो जो टीम होती है, एक्सपर्ट्स की टीम जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज होती है, वो भाग के आ जाती हैं उस पेशेंट की मदद। ये है हॉस्पिटल की। तो आप क्या करोगे अगर हॉस्पिटल में है, हम जैसे लोग कोड ब्लू एक्टिवेट कराते हैं, एक इमरजेंसी कोड है कोड ब्लू, वो कराते हैं। आपके लिए क्या है, आप अगर बाहर हो, सड़क पे कोई मिल गया तुम्हें, ऐसा है ना, पार्क में कोई मिल गया, चलते फिरते कोई मिल गया, हमारे घरों में भी होता है, तो आप क्या करोगे? एम्बुलेंस नंबर या इमरजेंसी नंबर
112 है आपका और 108 है, यही है। और कुछ है नंबर मुझे तो आप बता सकते हो। 112 पे भी कॉल कर सकते हो, वो पुलिस का नंबर है एक्चुअली, क्राइम से रिलेटेड के लिए, बट वो अप्रोच कर देते हैं एम्बुलेंस वालों को। या फिर डायरेक्टली 108 पे भी आप कॉल कर सकते हो, तो वहाँ पे नियर बाई जो भी एम्बुलेंस होगी वो इमीडिएटली अपना पूरा सामान लेके वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो अगर आप बाहर हो तो ऐसे आपने 108 पे या 112 पे इमरजेंसी कॉल पे डायल करना है, और इमीडिएटली आपने हड़बड़ाना नहीं है, आपने सही तरीके से बताना मैं हूँ कहाँ, लोकेशन बतानी है, ठीक है, और वो आपकी मदद के लिए वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बट अकेले ही कुछ ना कुछ करते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, इसलिए कॉल फॉर हेल्प जरूर करनी। यानी कॉल फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए लोगों को बुलाना है। शोर भी मचाना है, हेल्प के लिए आओ, तब 3-4 लोग खड़े हो जाएंगे वहाँ पे आके, एक बंदा CPR देगा, एक बंदा सांस देगा, एक कॉल भी तो कर देगा, तो 2-3 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ज्यादा मदद हो जाएगी। बट फाइनल मेडिकल की टीम आना बहुत जरूरी है, एम्बुलेंस का आना बहुत जरूरी है, तो आपको 108 या 112 पे कॉल करनी ही करनी है। ठीक रखना है उसके ऊपर ऐसे लाइक दिस, ठीक है। और 2 चीजें करेंगे अब हम, एक तो धड़कन पे मैंने हाथ रख दिया, दूसरा मैंने उसके मुंह के ऊपर अपना फेस रखा और कान रखे, ठीक है। तो वो अगर सांस छोड़ेगा तो मेरे कान को और गालों को फील होएगा, सांस छोड़ेगा तो कान और गालों से टकराएगा। कान हमारे बहुत सेंसिटिव है, जल्दी पकड़ लेते हैं चीज, है ना। और दूसरी चीज देखनी है हमने, छाती ऊपर आ रही है और नीचे जा रही है, चेस्ट राइज और डाउन, फूल रही है और सिकुड़ रही है, फूल रही है और सिकुड़ रही है। तो 3 चीजें चेक करोगे एक साथ, क्या क्या साथ में करना है। और इसके लिए आपके पास सिर्फ टाइम कितना है, 5 से 10 सेकंड। वेरी गुड, 5 से 10 सेकंड, सेकंडों में काम करना है आपने धड़कन पे हाथ रखा, आपने कान ऐसे नीचे लेके गए अपना, और आंखें रखी अपने छाती के ऊपर, तो आप 3 चीजें चेक कर रहे हो, ठीक है। और गिनना भी है हमें, ऐसे थोड़ी हो जाता है 1 2 3 4 5 सेकंड हो गए, नहीं हुए, इतनी जल्दी नहीं होते ना। तो हम अपनी भाषा में कैसे गिनते हैं, 1001, 1002, या आप गिन सकते हो 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। 10 से ज्यादा नहीं गिनने, 5 से कम नहीं गिनने, 5 से कम नहीं गिनने, कई बार फील नहीं होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हो आप हाथ, और 10 से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इन दोनों में से कोई एक भी चीज मिस है, नहीं मिल रही है, या तो सांस आ रहा है धड़कन नहीं है, या धड़कन कमजोर है पर सांस नहीं आ रहा है, तो दोनों ही सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, एम्बुलेंस बुला लेनी है, CPR शुरू कर देना है, हल्ला मचाना है, मदद के लिए बुलाने हैं लोग, हेल्प के लिए, ठीक है। होता है, ठीक है, वो 1 से 1.5 इंच ही रहता है हमारा, और 4 सेंटीमीटर तक रहता है, बट फिर भी आपको बताना चाहिए। इफेक्टिव कैसे रखना है, CPR बता ही दिया है, 100 से 120 के बीच में रखना है। कंप्रेशन देते टाइम आपने डेप्थ का ध्यान रखना है, और बीच बीच में सांस भी देने हैं मरीज को, सांस भी नहीं छोड़ने हैं, सांस भी देने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो जब मैं कराऊंगी तब 2-3 पिक्चर लगना है ना, ते उन्हों हीट स्ट्रोक कहते ने ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ भी कुछ 2 चीज़ें दसियां मैं, हीट क्रैम्प्स एंड एग्जॉशंस, ठीक है। तो लू लगने से पहले जो चीज़ें थोड़ी सी हम एक्सपोज होते हैं जिन चीज़ों के लिए, तो वो हीट क्रैम्प्स है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमने क्या करना है, इमीडिएटली हमारे पास फर्स्ट एड किट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। पीपी क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें ग्लव्स होते हैं, मास्क होता है, सब कुछ होता है, बट हमें इतना ग्लव्स के अलावा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इट्स ओके। हमने पेशेंट को सेम जैसे हीट स्ट्रोक में किया था, रेस्ट करवाना है, कूल प्लेस पे ले जाना है, ज़्यादा क्लोथिंग्स है तो उनके कपड़े थोड़े कम करने हैं, ठीक है, और फैनिंग करनी है, पंखा छोड़ना है, ठंडी हवा आए उनको, पानी छिड़क सकते हो, हॉट आप कोल्ड ड्रिंक्स पिला सकते हो उनको, शुगर और नमक डाल के, यानी नींबू पानी टाइप पिला सकते हो आप उनको, ठीक है। आइस पैक है आपके पास, आइस है, बर्फ़ है, तो आप वो भी आर्मपिट्स और आपके जो ग्राइन एरिया है वहाँ पे रख सकते हो, और ठंडा कपड़ा भी उनके ऊपर डाल सकते हो, टकोर कर सकते हो ठंडे कपड़े से। तो सेम है,
अगर आप ऐसा कर लेते हो तो टेम्परेचर डाउन आ जाएगा और पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है बेहोशी नहीं टूट रही है उसके बाद छूट भी, तो नियर बाई हॉस्पिटल में पेशेंट को फटाफट से ले जाइए, ठीक है। वो क्या करेंगे, हो सकता है एक्सेसिव स्वेटिंग हुई हो, पसीना निकला हो, बीपी डाउन हो गया हो, और मल्टीपल थिंग्स हो जाती हैं जब ब्लू लगती है। तो जाएगा जब अस्पताल में तो उसको फ्लूइड देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो ठीक होएगा, ठीक है। वहाँ के माहौल में और बाहर के माहौल में बहुत फ़र्क होता है, तो और ऑटोमेटिकली वहाँ पे एसी वगैरह होंगे, ठंडक मिलेगी, फ्लूइड जाएगा बॉडी में, तो फ्लूइड जाने से बीपी भी ठीक होएगा, उसकी डिहाइड्रेशन यानी जो पानी की कमी हो चुकी है वो भी ठीक हो जाएगी, और ठंडक भी मिलेगी हमारे टिश्यूज़ को और सेल्स को, तो वो रिकवर होएगा बहुत जल्दी, ठीक है। अभी एक और स्लाइड है, सॉरी लास्ट स्लाइड। एनिमल बाइट, कुत्ते बंदर काट जाते हैं, ठीक है, कुत्ते बटते हैं, है ना। आप लोगों के पीछे तो भागते होंगे ना जब अनजान गलियों में जाते हो, हैं? रोज का काम होगा और ये तो फिर कभी काटा है, सिर्फ पीछे भागते हैं? अच्छा ठीक है, चाहे कुत्ता काट जाए चाहे कोई भी जानवर काट जाए, उनके सलाइवा जो होता है ना, थूक होता है, उसमें रेबीज के कीटाणु होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब कोई काट जाता है तो हमें क्या करना होता है। आपने पैनिक नहीं होना है, पानी के साथ अच्छे से धो लो, कम से कम 15 से 20 मिनट धोना है। जबरदस्ती ब्लीडिंग नहीं निकालनी है, ना रोकने की कोशिश करनी है। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आएगी तो पहले उसको साफ कर लो, फिर उसको दबा दो। और अगर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग है तो बहते हुए पानी में आपने साफ करना है उसको अच्छे से, जख्म को 10 से 15 मिनट के लिए, आपने मिनट के लिए, सेकंड्स में नहीं कि फटाफट से ऐसे खोला नलका हाथ धोए और चले जहाँ पे भी काटा है, नहीं, 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम आपको वो क्या करना है, रनिंग वाटर में क्लीन करना है। उसके बाद आपके पास कोई सोल्यूशन है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, डिटॉल एंड ऑल, तो आप वो लगा सकते हो, ठीक है। और फिर इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना है आपने। ये नहीं सोचना है यार छोटा सा जो रगड़ लगी है, छोटी सी तो खरोच मारी है बंदर ने या कुत्ते ने, नहीं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको हॉस्पिटल जाना है और वहाँ पे जाके अपने को ट्रीटमेंट करवानी है। टेटनस तो लगाएंगे वो आपको एट अ स्पॉट, ठीक है। उसके बाद आपको 3 से 4 या 4 से 5 सेट जो है इंजेक्शन के लगते हैं, रेबीसन के, रेबीज के, ठीक है। वो भी देखेंगे कि आपका खून निकल आया है तो उसमें आपको एक बूस्टर डोज भी दी जाती है, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, बट आपने मिस नहीं करना है। आपको 4 से 5 टीके लगेंगे और उनको मिस नहीं करना है। पता नहीं लगता है फ्यूचर में क्या हो जाए। मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं ऐसे जो 2 टीके लगवाने के बाद सोचते हैं हमें तो कुछ नहीं होना, 2 टीके लगवा के छोड़ दिया, 1 साल के बाद वो पूरे डॉग बन गए होते हैं, समझ गए, हड़क चढ़ने ने। जैसे घर में रखा होता है, जैसे तो ऐसे ही खेलते अचानक से उसके बाइक पड़ जाए, नॉर्मली थोड़ा सा बाइक पड़ जाए, थोड़ा सा ब्लड वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे घर का जानवर हो चाहे बाहर का जानवर हो। घर के जानवर को आप फिर भी, एक मिनट, घर के जानवर को फिर भी आप इंजेक्शन लगवाते हो, बट फिर भी आपने, चाहे घर का है चाहे बाहर का है, आपने उसको हल्के में नहीं लेना है। पहली बात, अगर उसने हल्की सी खरोंच लगाई है या फिर डीप लगा दी है, आपको जाना ही जाना है अस्पताल में। अगर हल्की खरोंच लगाई होगी, अगर वो ब्लड नहीं निकला होगा तब भी आपको 4 टीके तो लगेंगे। अगर ब्लड निकल गया है, उसमें कैटेगरी होती है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। ब्लीडिंग निकल आई है तो आपको एक बूस्टर डोज लगती है, थोड़ा महंगा होता है इंजेक्शन वो, पर वो इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। फ्री लगती है। हाँ, गवर्नमेंट में चले जाओगे तो फ्री लगेंगे, प्राइवेट में जाओगे तो महंगी होती है ना। तो ब्लीडिंग के लिए एक बूस्टर डोज लगती है, खरोंच के लिए बूस्टर डोज नहीं लगाते हैं वो। तो चाहे खरोंच लगे चाहे डीप काटा हो, वही जाना तो अस्पताल में पड़ेगा और अपने को टीके लगवाने हैं। और आज ही ट्रीटमेंट लेके नहीं छोड़ना, नहीं तो पता नहीं लगेगा 1 साल बाद हलक के हम औरों को काट रहे हो। देखा होगा ना, हलक जाते हैं, डॉगी बन जाते हैं हम भी, तो ऐसा नहीं करना है। भोंकते भी हैं, यस, बहुत कुछ होता है, हलकना उसी को बोलते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आपने। ये क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है अभी तक, फिर हम CPR करेंगे। मैं पूछ लूं कुछ फिर? सब जो पढ़ा अभी तक पता चल गया, क्या क्या पढ़ा, चलो रिवाइज कर लेते फटाफट 2 मिनट लगा के। पहले सबसे पहले क्या किया हमने? फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा कि होता क्या, प्राथमिक उपचार होता है ना, जब तक कोई नियर बाई हमें हेल्प ना मिल जाए। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, अनरिस्पॉन्सिवनेस पढ़ी। अनरिस्पॉन्सिवनेस, जब आप कोई स्टिमुलस दे रहे हो तो बंदा एक्ट नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, तो इट मींस
कुछ ना कुछ हो चुका है, उसको CPR देना पड़ेगा, है ना। और रिस्पॉन्सिवनेस, जब आप कुछ भी एक्शन कर रहे हो और वो ऑपोजिट एक्शन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल। फिर क्या पड़ा? ब्लीडिंग, इंजरीज, ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग में भी मैंने 3 तरीके से बताया कि वेन से होती है, आर्टरी से होती है और कैपिलरी से होती है। सबसे खतरनाक ब्लीडिंग कौन सी है? नहीं, आर्टरी से। धमनी से जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत सीवियर होती है, उसमें बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। आर्टरीज, नाड़ी वाली जो ब्लीडिंग होती है वो थोड़ी कम होती है, बट चांसेस उसमें भी ब्लीडिंग ही होते हैं, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है। और कैपिलरीज में कम होती है, तो वो भी बताया आपने क्या करना है कि इमीडिएटली क्लीन करना है, ठीक है। कैपिलरीज हमारी कैशिकाएं बताई थी मैंने, वो उसमें थोड़ा ब्लड होता है, वो ना छोटी नाड़ियां तो नहीं होती है, छोटी कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड पहुंचाती हैं हमारे एंड तक, स्किन के एंड तक। वेन्स तो हमारी दिख रही हैं, जो अंदर बह रही हैं, ठीक है। कैपिलरीज हर एक हिस्से में होंगी स्किन के, ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो, तो वो उनमें थोड़ा खून की मात्रा कम होती है, बट उसको भी इग्नोर नहीं करना। उसके बाद क्या पढ़ा? फ्रैक्चर। वेरी गुड, फ्रैक्चर काफी बार पढ़ लिया हमने, है ना। फ्रैक्चर है, उसके बाद फ्रैक्चर में फटाफट बता दूं, आपने हिलाना डुलाना नहीं है, आपने स्प्लिंट करना है, कुछ खाना पीना नहीं है। फिर आ गया आपका स्प्रेन और स्ट्रेन। जब आपके कनेक्टिंग बोन्स जो टिश्यू जॉइंट्स होते हैं वहां पे जब इंजरी हो जाती है तो वो स्प्रेन होता है, ठीक है। क्या करोगे उसके लिए? राइस, रेस्ट करना है, आइस अप्लाई करनी है, गर्म पट्टी लगानी है, एलिवेट करके रखना है। फिर क्या पड़ा? लू लगना एंड में। तो लू लग जाए तो ठंडी चीजों को क्या करना है? अपनी तरफ आकर्षित करना है, उसकी क्लोथिंग थोड़ी लूज करनी है, ठंडक देनी है, पानी वगैरह छिड़कना है, उस पर फैनिंग करनी है, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पिला सकते हो, आपको ठंडे ड्रिंक्स पिलाने हैं। और लास्ट में एनिमल बाइट, कुछ भी, चाहे उसने छोटी सी खरोंच मारी हो, चाहे दांत पूरा चबा दिया हो, आपको क्या करना है? उसको 15 से 20 मिनट क्लीन करना है। ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो तो धोने के बाद उसको रोक सकते हो, प्रेशर देने के बाद इमीडिएटली अस्पताल में चले जाइए। मैम इमीडिएट, अब जैसे कुत्ते ने काटा तो पता ही नहीं चला कि कुत्ते ने काटा था, बहुत देर बाद जाके थोड़ा सा लगा कि हाँ कुत्ते ने काटा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं बता रही हूँ, आपके ऊपर जब झपटा है वो, आप उस एरिया को देखने की वो नॉर्मली से आया, एकदम से काट के चला गया। मैं मतलब आपको जब भी पता चल रहा है, ऐसा नहीं बहुत डिले नहीं करना है। आपने नहाते हो तब तो पता चलेगा, पेन होएगा, थोड़ी देर में तो पेन होएगा। अगर आपको लग रहा है आप इमीडिएटली उसको वॉश करिए, जब भी पता चला। आपने डिले नहीं करना, किसी भी चीज़ के लिए देर नहीं लगती है, तो आप इमीडिएटली 24 घंटे का ले सकते हो, तो आप इमीडिएटली अस्पताल में चले जाइए, क्योंकि इंजेक्शन हमें कम से कम 48 से 72 घंटे के अंदर लगवा लेना। फीवर भी तो होता है कुत्ते काटने के बाद, फीवर भी तो होगा। आ सकता है फीवर, जरूरी नहीं है सबको आए। हाँ, वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आ सकता है, कुत्ते के काटने के बाद फीवर आए जरूरी नहीं है ये, ठीक है। वैक्सीन जब लगवा लेते हैं तो फिर आपको फीवर आ सकता है। ये क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद सबसे पहले सेफ्टी, दूसरा आ गया चेक फॉर रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हम शोल्डर पे टैप करेंगे, माथे पे टैप नहीं करना है, पेट पे टैप नहीं करना है, शोल्डर पे कोशिश करनी है। तो आप जोर से पूछें और आवाज भी ऊंची नहीं, सर आप ठीक हो, सर आप ठीक हो, सर आप ठीक हो। तो ऐसे हमने कम से कम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, 3 से 4 बार हमने शोल्डर पे टैप करना और पूछना आप ठीक हो। फिर हेल्प के लिए चिल्लाना है, क्योंकि अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, अनरिस्पॉन्सिव हो गया मरीज, अब आप हेल्प के लिए चिल्ला रहे हो। साथ में आपने अब क्या करना है? 2 चीजें करनी है, पल्स चेक करनी है प्लस ब्रीदिंग देखनी है। तो पल्स चेक करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगी? कैरेटेड, इसको बोलते हैं कैरेटेड पल्स। तो मैं पल्स पे जाऊंगी, ठीक है। अपना कान और गाल इसके नाक और मुंह के ऊपर लाऊंगी और चेस्ट के ऊपर ध्यान रखूंगी। तो मैं 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 कम से कम 8 से 10 बार 10 तक ये देखूंगी। 5 से 10 सेकंड तक मैं ब्रीदिंग और पल्स देखूंगी। अगर मुझे महसूस हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनमें से एक भी मिस है या दोनों मिस है तो इमीडिएटली मैं क्या कर दूंगी? अब CPR शुरू कर दूंगी। वेरी गुड। CPR शुरू करने के लिए मैं क्या करूंगी? इमेजिनरी लाइन बनाऊंगी। ये आगे निप्पल्स और यहाँ से स्टर्नम, तो बीच में मेरा हाथ आएगा। डोमिनेंट हैंड मेरा सब पहले नीचे आएगा और नॉन डोमिनेंट हैंड मेरा ऊपर आएगा। अब मैं पेशेंट के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे लीन हूँ। ऐसे नहीं जो दूर पड़ा है पेशेंट, मेरे को उसके बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर आना
पड़ेगा 90 डिग्री पे, ठीक है। और मैंने फिर कंप्रेशन शुरू कर देने। कितने कंप्रेशंस करूंगी पहला साइड पे करा दे कुछ सर, थोड़ा उधर ऊपर जाके सारा दी वीडियो बना लो। कोई बात नहीं। कंप्रेशंस कितने देंगे? पहला 30 कंप्रेशंस और 2 ब्रेथ आएंगे। 1 मिनट में कितने कंप्रेशंस देने हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 1 मिनट में होने चाहिए, तभी आप अचीव कर पाओगे गोल अपना, यानी उसको होश में ला पाओगे, उसकी धड़कनों को वापस ला पाओगे। और कितनी डेप्थ रखनी है, कितना हार्ड जाना है नीचे तक? 2 से 2.5 इंच। किसके लिए? अडल्ट के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। अगर बच्चा है तो उसके लिए, और वो भी हाथ से नहीं करते हैं, बच्चे को थंब से करते हैं या 2 फिंगर्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे, और मैं अब शुरू करूंगी और मैंने बोलना भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 30 हो गए। पेशेंट को छोड़ दिया मैंने, कोई इशू नहीं है। बस टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, फटाफट से भाग के मैं अब हेड एंड पे आऊँगी। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कैसे करेंगे? आप ऐसे भी कर सकते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। आप देखो कितना रास्ता खुल गया, ठीक है। मैं अपने को पूरा भरूंगी, मैं नाक बंद कर सकती हूँ एक हाथ से, देखिए चिन लिफ्ट हो चुकी है मेरी, ठीक है। नाक बंद किया, मैंने खुद भरा था, मैंने हाथ रखा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैंने फिर फटाफट से भाग के आना है और मैंने फिर अपने कंप्रेशन शुरू कर देने। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं अकेली हूँ तो मैं 30 कंप्रेशन करके 2 ब्रेथ दूंगी, 30 कंप्रेशन दूंगी, 2 ब्रेथ दूंगी, यानी 30 बार छाती दबानी है, 2 बार सांस देना है। अगर मेरे पास दूसरी हेल्प है कोई, तो मैं कंप्रेशन दूंगी और वो सांस देंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए तो 30 कंप्रेशन, जब वो सांस देने वाले की बारी आएगी, वो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके सांस देंगे, ठीक है। और मैं कंप्रेशन, जब 2 मिनट पूरे हो गए, वो बंदा इधर आ जाएगा, मैं उसकी जगह पे चल जाऊंगी, क्योंकि मैं भी तो कंप्रेशन देते देते थक जाऊंगी, उतना जोर नहीं रहेगा मेरे में, ठीक है। तो जब तक आपके पास कोई सहायता नहीं आए, तो आप इतना सा तो कर पाओगे। जब हमारे पास सहायता आ जाती है, आपके पास किट में ये सामान है क्या? ठीक है, फिर भी बता देती हूँ मैं कि सांस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको एम्बू बोलते हैं, ठीक है। इसको यूज़ कैसे किया जाता है? ये पतले वाला जो सिरा है, उसको हमने ऊपर वाले हिस्से पे रखना है और ये नीचे वाला चीन पे आता है हमारे, लाइक दिस, ठीक है। और ये जो चीज़ है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होनी चाहिए। अगर ये नहीं जुड़ी है तो एटलीस्ट हम एम्बू करेंगे तो वातावरण में कितनी % ऑक्सीजन है? 21%, यस, ठीक है। तो उतनी तो दे ही रहे हैं एटलीस्ट, जब तक ऑक्सीजन ना मिले आपको, ठीक है। तो इसको लगाने का क्या तरीका है? आप ऐसे लगाओगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करनी है आपने, तो वो लगा के फिर छोड़ना है ऐसे। दूसरा पर्सन जो होता है वो आपकी मदद कर सकता है, वो ऐसे रखता है मरीज को। जब इधर 30 कंप्रेशन हो गए, वो 2 ब्रेथ दे देगा, इसको दबाना है ऐसे, 2 ब्रेथ, वो अपना कंप्रेशन शुरू कर देगा। जब फिर 30 हो जाएंगे, वो 2 ब्रेथ दे देगा। तो ऐसे हम रेस्क्यू ब्रेथ देते हैं इसकी सहायता, ठीक है। इतना सा है CPR में, इतना सा भी अगर आ गया तो हम किसी की धड़कनें चला सकते हैं, वो उसकी धड़कन वापस आ सकती है, उसको अस्पताल ले जाएंगे, उसके बाद तो ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो इससे आप किसी की ज़िंदगी बच सकती है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? CPR करने के लिए आना पड़ेगा। आप आइए मैम, पहले आइए, सबसे पहले डर खत्म करना है। बच्चों को जब CPR देते हैं, तो न्यूनेटल है, तो इनकी छाती पे हम ऐसे CPR देते हैं, या फिर आपके बच्चे ऐसे हैं तो 2 फिंगर्स भी लेते हैं, सेम इमेजिनरी लाइन बनानी है बच्चे के लिए, और वहाँ पे हल्के से कंप्रेशन देने। और कितना बताया था मैंने? 1 से 1.5 इंच, और या फिर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो बताइए, मरीज पड़ा है आपके सामने, क्या करोगे? कुछ नहीं, घबराना नहीं है। पता है, हम अपनों की मदद कर सकते हैं ऐसे। हमारे घरों में दादू हैं, दादीज हैं, मैंने अपने घर में किया है CPR, हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। 22 की मार्केट में गई थी आज से 5-6 साल पहले, वहाँ पे यंग लड़का गिर गया एकदम से, और उसको CPR देके हमने बचाया है। ऐसा नहीं, अगर हमें आता होगा तभी बचा पाओगे आप, कोशिश तो करो। चलो, सबसे पहले सेफ्टी, फिर रिस्पॉन्स। हाँ बताओ। आप ठीक है? शोल्डर पे टैप करना है, टैप यानी हाँ, जोर से, जोर से। आप ठीक है? आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए। आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? आप ठीक हो? आप ठीक हो? तो सुनेगा उसको यार, थोड़ा जोर से बोलना है हमने, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अब आप पल्स चेक करोगे। हाँ वेरी गुड, ये है आपका, यहाँ से ये चिन्ह है, यहाँ से 2 फिंगर नीचे होता है, या फिर ये आपकी हड्डी होती है ना, यहाँ पे मोटी, इससे थोड़ा सा ऊपर को आओगे, 4 फिंगर तो इधर भी है,
और साथ में, और सांस आपका कानों पे लगेगा या गालों पे लगेगा और छाती देखनी। और गिनना कैसे है मैम आपने? 1001, Very good. 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। वेरी गुड, वेरी गुड। 10 सेकंड हो गए, नहीं मिला? अब शुरू करो, क्या करोगे अगला? CPR देना है। कहाँ रखोगे हाथ आपने? हाँ वेरी गुड, यहाँ से और यहाँ से ये कटी आपकी लाइन, आप यहाँ पे हाथ रखोगे, ठीक है, वेरी गुड। करिए, 30 तक करना है, थोड़ा दबाना, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। एल्बो हमारे स्ट्रेट होने चाहिए, टेढ़े नहीं करने हैं, और शोल्डर का भार लगाना है। शरीर का लगाओगे तो हड्डी टूट जाएगी। अब आओ इधर, आपको उधर से नहीं, पहले उधर से नहीं कर पाओगे आप ब्रेथ देने का, आपको फटाफट से सिर की साइड आना पड़ेगा। आंखें नहीं दबानी उसकी, हमने यहाँ से आप लोगे हेड और यहाँ से ऐसे टिल्ट कर दोगे, ठीक है। और फिर आप इस हाथ से ही नाक बंद करोगे, अपने को भरोगे और सांस दोगे। दो, यहाँ से छोड़ सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे रख लो। जब ऐसे रखते हो ना तो आप पे ऑटोमेटिकली चीज भी आप सपोर्ट कर पाते हो। वेरी गुड। और मुट्ठी खोलनी है, मतलब ऐसे बनना चाहिए लूप थोड़ा सा। हाँ वेरी गुड, हवा नहीं निकलनी चाहिए, ऐसे मुट्ठी बंद करनी है। दो ही देने हैं। फिर क्या करोगे? फिर फटाफट से उठ के आओगे और फिर कंप्रेशन शुरू कर देने हैं। याद रखना, सांस देना और छाती के कंप्रेशन देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको इस काम के लिए। आपकी नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, 0 मिनट में आप सब कुछ बचा सकते हो। 4 मिनट हो गए ना तो दिल बिल्कुल ही बंद हो जाता है, फिर वो वापस नहीं आएगा। अगर फिर भी आप CPR करोगे तो वापस आ सकता है दिल। 4 से 6 मिनट अगर हो जाते हैं तो आपका ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली, ठीक है। और जब 10 मिनट हो जाते हैं अगर CPR नहीं शुरू किया तो ब्रेन इरिवर्सिबल डैमेज, यानी जो दोबारा वापस नहीं आ जाता। फिर जिंदा लाश है, देखा होगा ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़े हैं, धड़कन चल रही है सब कुछ, फिर वो जिंदा लाश है। तो CPR अगर विद इन आप 1 मिनट के अंदर अंदर शुरू कर पाओ तो आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो। बहुत अच्छा किया। और कोई करना चाहता है? नहीं करना? सर जी तुसी आ जाओ, एक बार लास्ट पर आ जाओ, आ जाओ, छेती आ जाओ, छेती आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, छेती आओ, उसको यूज करना है, जल्दी आ जाओ। मैम इतने घुटनों में बैठ नहीं होता, एक्सीडेंट होता है जैसे आप बैठते बैठ हैं। नहीं होता है? कार पड़ी हुई है ना। कौन करना चाहता है आप? वेरी गुड। सर मेरी वीडियो क्लोज कर देना, मेरे बंदा जैसे बाहर पड़ा है, ध्यान से सुनिए भाई, शुरू से बताएंगे पूरा सिनेरियो। बंदा जैसे बाहर पड़ा है, पहले उसको मैं सुरक्षित स्थान पे लेके आऊँगा। वेरी गुड। उसके बाद मैं उससे पूछूंगा आप ठीक हो? ठीक हो? ऐसे नहीं दबाना, आप ठीक हो, आप ठीक हो, टैप करना है, यस। करो अभी करो, इटन नहीं है, कोई बात नहीं, दबाना नहीं है, टैप करो। टैप यानी आपने थम दबाना है, करो। ठीक हो? ठीक हो? ठीक हो? बहुत ठीक हो, ठीक हो नहीं, दम होना चाहिए बात में। ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसको देखेंगे, उसकी सांस क्या रही है। देखो, कैसे देखोगे? जल्दी से फटाफट से सबसे पहले उसकी सांस देखूंगी। दोनों चीजें देखोगे आप, धड़कन भी और सांस भी। कैसे देखोगे? नहीं सर, ये तो जब सांस देनी है ना तब देखना है आपने। धड़कन कैसे देखोगे? आप यहाँ से यहाँ हाथ ले जाओगे, हाँ ये, और अपना इसको रहने दो, इसकी मुंडी ना मरोड़ो, आप नीचे उसको हंसना नहीं है ना। अब आप ये कान पे आपके सांस लगेगा और छाती देखनी है ऊपर और नीचे हो रही है। गिनो, कैसे गिनोगे? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, हो गए 10, 1006। नहीं मिली। अब 10 हो गए, 10 सेकंड हो गए। मरा ही होता है, पर ऐसे देखा जाए जिसकी धड़कन और सांस रुके वो मरा ही होता है, फिर भी हम वापस ला सकते हैं अगर बहुत लंबा टाइम ना हो। पर ट्राई तो कर सकते हैं मैडम।
आपको कभी भी आपका क्वेश्चन नहीं होगा। और कोई अस्पताल, चाहे बड़े से बड़ा अस्पताल हो, कोई गरीब बंदा भी नियर बाई, मतलब यहाँ मैक्स है 6 सेक्टर में, अगर 6 फेज में कोई एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले मैक्स में लेके जा सकते हैं। वहाँ पे मना नहीं कर सकते मैक्स वाले इमरजेंसी वाले कि हम नहीं देखेंगे मरीज को, इसके पास पैसे नहीं है एंड ऑल। फर्स्ट एड सबको देनी पड़ेगी, चाहे छोटा अस्पताल है चाहे बड़ा अस्पताल, और आपको नहीं पकड़ा जाएगा, ये भी रूल है। हाँ जी, ठीक है। कहाँ पे हाथ रखोगे सर? हाथ नहीं, बीच में नहीं, मैंने क्या बताया था, कहाँ पे लाइन बनानी है आपने, लाइन बनानी है ये निपल्स के बीच में कौन सी लाइन? एक यहाँ से निकालोगे लाइन और एक यहाँ से, यहाँ आएगा आपका। रखो, हाथ रखना है, हथेली रखो वहाँ पे, यहाँ रखो, इनको क्रॉस करो फिंगर्स को, ऐसे रखना है हथेली को। रुक जाओ भाई, फिर आप ऐसे बैठ पाओगे, ठीक है। ये है, यहाँ हाथ रखा है, इमेजिनरी लाइन बनाई, हाथ रखा ऐसे क्रॉस किया, अब हाथ रखा, ठीक है। फिर हथेली रख, और हथेली रखने के बाद उठाना नहीं है 30 जब तक ना हो टूट जाएगी हड्डियाँ। कितना जाओगे नीचे? हंसना नहीं है। हाँ, तो आप और फास्ट भी रहें, 100 भी तो करने हैं 1 मिनट में, थोड़ा ठीक है, वेरी गुड। पर आपकी हील ना यहाँ पे आ गई लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल आप यहाँ पे हील रखोगे, ठीक है। आप हाँ क्रॉस करो उंगलियाँ से, हाँ अब करो, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। सांस दे दो, 30 गिनने थे, कोई बात नहीं, सांस दे दो। अटेंडेंस हो गई है, नाक नहीं बंद किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई और करना चाहता है? हाँ, वैसे उनमें से सभी ऐसे रहे, बट इसको उठाएं। और कोई करना चाहता है प्रैक्टिस? देखो, घबराओ मत, डरो मत, शर्माओ मत, सबसे बड़ी बात, किसी की जिंदगी बचा सकते हो अगर आपको। देखो, देखने में हमें लगता है हमने सब कुछ सीख लिया, जब करने की बारी आती है तो हमें नहीं आता करने। तो कोई करना चाहता है प्रैक्टिस तो आ सकता है। आना चाहते हो? आ जाओ।